रास्ते में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं इंदौर नगर निगम की महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकमल जी और आर्च बिशप पास्कल टोकनो। हम तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अचानक स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से महामहिम राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है और कार्यक्रम की सफलता के प्रति शुभकामना व्यक्त की है। हम महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकमल, आर्च बिशप पास्कल टोकनो, बिशप जॉन एनेथिल, बिशप चौको, रेवरेंड बिशप मेढ़ा, फादर दुरईराज, फादर क्लारेंस और फादर जोमुन से आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करें। फादर जोमुन से आग्रह है कि वे अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। फादर जोमुन। Honorable Srimati Uma Shashi Sharma, Mayor Indore, His Grace Pascal Topno, Archbishop of Bhopal, Honorable Dr. Raj Kamal, Vice Chancellor Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore, Your Excellency Bishop George Anathil, Bishop of Indore, Your Excellency Bishop Chako Thotamarikal SVD, Bishop of Jabua, Your Excellency Bishop Meda, Senai Bishop Bhopal, respected Father Dureiraj, Provincial Superior, Central Indian Province, Father Clarence Rambikal, the founder father of Saprakashan, distinguished guests, ladies and gentlemen.
I extend a warm welcome to all of you to this evening's Silver Jubilee celebration of Satprakashan Sanchar Kendra. Satprakashan Sanchar Kendra is a mass media communication center owned by the Divine Word Society, a Catholic religious organization in Indore. The center has been serving the nation for the past 25 years. An audio-visual presentation of Satprakashan after a short while will give you a glimpse of its communication activities. We, the Satprakashan family, is indeed very happy to have you all, our distinguished guests, associates, and friends for this evening's Jubilee celebration. Today, we have with us our Mayor, Dr. Uma Shashi Sharma, the first person of Indore to preside over this function. I need not speak much about our Mayor, who is always in the limelight of the media for various developmental activities. She is a medical doctor by profession and a dynamic motivator. During her tenure, we see Indore is progressing very fast. May I now request Father Dureraj, the President of Satprakashan Sanchar Kendra, to please welcome Dr. Uma Shashi Sharma. We are indeed very privileged to have Your Grace Pascal Topno, the Archbishop of Bhopal, to grace this occasion. May I now request Father Clarence Rambikal to please welcome Archbishop Pascal Topno. It is my pleasant duty now to welcome Honorable Dr. Raj Kamal, the Vice Chancellor of Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. Dr. Raj Kamal has his doctorate in electronics from IIT Delhi. He is a great academician and has served as a professor in Patiala University. He is a voracious reader and has authored a number of articles and 10 books in electronics and computer. He has visited several countries abroad. After taking charge as Vice Chancellor of Devi Ahilya Vishwavidyalaya, he has started a number of departments. We are indeed privileged to have a great personality in the person of Dr. Raj Kamal to grace this occasion. I request Father Gio George, the Assistant Director of Satprakashan, to please welcome Dr. Raj Kamal. It is my privilege to welcome His Excellency Dr. George Anathil SVD, Bishop of Indore, under whose patronage and guidance Satprakashan has grown and developed. Bishop Swamiji is a spiritual head and a leader of the Diocese of Indore. May I now request Father Matthew Chinnakudi to please welcome Bishop George Anathil. We are indeed blessed to have His Excellency Bishop Chako Thotumarikal SVD, Bishop of Jhabua. He is the Regional Chairman for Social Communication for Madhya Pradesh and Chhattisgarh states. He himself is a man of communication. He has done his Masters from England in Journalism and Communication. May I kindly request Father Herman Bandod to please welcome Bishop George Chako Thotumarikal. It is indeed our privilege to have Bishop Thomas to please welcome Bishop Meda. Reverend Father Sebastian Dureraj is the President of Satprakashan Sanchar Kendra, which is a unit of Divine Word Society. He holds a doctorate in educational psychology from USA.
May I now request Father Ajit Kumar Topo to please extend a floral welcome to Father Arogya Sebastian Dureraj. If Satprakashan can glory in its achievements, the credit goes to Father Clarence Rambikal, the founder of Satprakashan. Having done journalism from Oxford University, he took the initiative to start Satprakashan. He is a voracious reader and has written a number of articles and books. Request Father Matthew Chinnagudi to please welcome Father Clarence Rambikal. On this auspicious occasion, I would like to announce to you that we have instituted a scholarship of Rs 10,000 towards mass media communication studies for a deserving poor student from Madhya Pradesh and Chhattisgarh states every year. And also we have launched a website with the login name www.satprakashan.com. I once again extend you a very hearty welcome to one and all. Thank you. God, our Heavenly Father, as we are gathered here for the Silver Jubilee celebration of Satprakashan Sanchar Kendra, we thank and praise you for all your blessings upon this institution, for all the service Satprakashan has done for the nation, for the society, through print media and mass media. Jesus has said, "You are the light of the world. Let your light shine before men, that they may glorify your Heavenly Father." May the good works of Satprakashan glorify you and bring the good news of harmony, peace, and brotherhood to the people of this area, especially of MP and Chhattisgarh. Lord, bless all those who are gathered here for this celebration, that they may experience your love and your guidance in their life, that they may be led by your light to walk in the path of justice and peace and harmony. Lord, bless our country, our leaders, that they all may be instruments of your peace in this country and in our states. Lord, we thank and praise you for all your blessings that you have bestowed upon your children and upon all of us. Bless all the members of Satprakashan who work for peace and harmony and brotherhood through their publications and proclamation, especially through Radio Veritas Asia, through mass media, through audio and video productions. Lord, let their efforts be successful and crowned by your blessing to bring peace and harmony among people. Lord, may all of us who are gathered here experience your love in our life. We make this prayer through in the name of Jesus our Lord. Amen. डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी से आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें।
बताया गया है कि जीवन किस तरह बहुत छोटी छोटी सी सामान्य सी चीज़ों से अपना आकार ग्रहण करता है और फिर संश्लेषित रूप में किस तरह महाजीवन के रूप में अपनी निरंतरता में स्पंदित होता रहता है। इस नृत्य रचना का संयोजन किया है श्रीमती रागिनी मक्खर ने। कथक के लखनऊ घराने की प्रतिनिधि रागिनी एक कुशल नृत्यांगना तो है ही, एक बेहतरीन कोरियोग्राफर भी हैं। श्रीमती सुचित्रा हरमलकर, शमा भाटे और श्रीमती सुधा सिंह की योग्य शिष्या रागिनी अब तक हरिदास संगीत सम्मेलन, मालवा उत्सव, सिंहस्थ कला उत्सव जैसे तमाम प्रमुख संगीत समारोहों में शिरकत कर चुकी हैं। रागिनी अपने समूह के साथ प्रस्तुत कर रही हैं नृत्य संयोजन द कलर्स ऑफ लाइफ।
अब हम आज के हमारे विशिष्ट अतिथि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकमल जी से आग्रह करते हैं कि वे मंच पर पधारने का कष्ट करें। सत्प्रकाशन संचार केंद्र के अध्यक्ष और एसवीडी प्रोविंशियल फादर दुराईराज से अनुरोध है वे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकमल को स्मृति चिन्ह भेंट करें। Honorable Mayor of Indore, Madam Dr. Uma Shashi Sharma, and Honorable Bishops who have come from different parts of the country and different part of this state, the distinguished guests, ladies and gentlemen, today is a very important day. Satprakash publication is going to have Silver Jubilee celebration, and Satprakash publications has excellent contribution in the life of the Indore and life of the state and life of the whole nation. Satprakash had a studio, I am told, since 1981 there. In our university, we have established the similar facilities in 1992, and it is one of the important media center in the whole of the state of Madhya Pradesh, as you have seen today. We wish them complete success in the years ahead, and we congratulate them on this important occasion in the life of Satprakash. Wish you all the best. आज हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती सादिया अफरोज। आप सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री बेकल उत्साही की बेटी हैं और उर्दू की बहुत अच्छी रचनाकार हैं। विगत काफ़ी समय से आप सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। पुरवाई और नूर की बरखा शीर्षक से आपके 2 ऑडियो कैसेट्स बने हैं, जिनमें आपने अपनी तथा बेकल उत्साही जी की रचनाओं को स्वर दिया है। आकाशवाणी दूरदर्शन से संबद्ध सादिया जी आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रही हैं उर्दू की एक रचना। सादिया जी का स्वागत है। हेलो, सबों को मेरा नमस्कार। और मैं एकता पे एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लूँगा, ज़रा तुम जो मुस्कुरा दो। जले दीप के जले दीप
फूल महके, चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लूँगा। जरा तुम जो मुस्कुरा दो, जले दीप फूल महके। ऐ क्षितिज को छूने वालों, ना बुझाओ जुगनुओं को। ऐ क्षितिज को छूने वालों, ना बुझाओ जुगनुओं को। मेरे घर में है अंधेरा, कोई चांदनी उगा दो। मेरे घर में है अंधेरा, कोई चांदनी उगा दो। जले दीप फूल महके, ऐ समय के चांद तारों, ना सजाओ मेरा जीवन। ऐ समय के चांद तारों, ना सजाओ मेरा जीवन। मेरी जिंदगी है इसमें, मेरा देश जगमगा दो। मेरी जिंदगी है इसमें, मेरा देश जगमगा दो। जले दीप फूल महके, ऐ हवाओं के झकोरों, कहाँ आग लेके निकले। ऐ हवाओं के झकोरों, कहाँ आग लेके निकले। मेरा गाँव बच सके तो, मेरी झोपड़ी जला दो। मेरा गाँव बच सके तो, मेरी झोपड़ी जला दो। जले दीप फूल महके, ये चट्टान नफरतों की जो पड़ी है रास्ते में। ये चट्टान नफरतों की जो पड़ी है रास्ते में। इन्हें एकता के हाथों चलो धूल सी उड़ा दे। इन्हें एकता के हाथों चलो धूल सी उड़ा दे। जले दीप फूल महके, मुझे बाद में बनाना कोई हिंदू या मुसलमान। मुझे बाद में बनाना कोई हिंदू या मुसलमान। मैं मरूं के इससे पहले मुझे आदमी बना दो। मैं मरूं के इससे पहले मुझे आदमी बना दो। जले दीप फूल महके, चमन इस तरह सजा दो। मैं गगन उतार लूँगा, जरा तुम जो मुस्कुरा दो। जले दीप फूल महके। शुक्रिया। अध्यापक सदस्यों फादर क्लैरेंस स्ट्रैम्बिकल और फादर हेनरी नारिया मौजूद हैं और यहाँ अपनी सेवा के 25 साल पूरे करने वाले साथी श्री पास्कल भी मौजूद हैं। हमारे आज के इस आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर उमा शशि शर्मा से आग्रह है कि वे फादर हरमन क्लैरेंट स्ट्रैम्बिकल,
फादर हेनरी नारिया और श्री पास्कल मंच पर आने की कृपा करें। अति सम्मान्य डॉक्टर उमा शशि शर्मा, महापौर इंदौर, सम्मान्य डॉक्टर राजकमल, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, महामहिम आर्च बिशप पास्टर टोपनो भोपाल से, महामहिम बिशप जॉर्ज अनाथिल इंदौर से, महामहिम बिशप चाको तोटिमारिकल झाबुआ से, महामहिम बिशप मेड़ा भोपाल से, रेवरेंड फादर दुर्राराज मध्य भारत प्रोविंशियल सुपीरियर, उपस्थित सज्जनों और मित्रों, यह कितना सच है कि सुंदर है वे हाथ सृजन करते हैं जो सुख से, धीरज से, सच से, साहस से हर क्षण, हर पल, हर दिन और हर युग निरंतर अध्ययन, निरंतर मनन चिंतन, चेहरे पर सदैव रहने वाली मुस्कान, शांत सौम्य सुंदर व्यक्तित्व एवं सर्वधर्मों का ज्ञान रखने वाले फादर क्लारेंस रामबिकल एसवीडी के लिए ये पंक्ति मानो उनके जीवन की गाथा कहती है। लंदन से मीडिया और संप्रेषण की पढ़ाई पूर्ण कर आपने सत्प्रकाशन संचार केंद्र की नींव रखी, लगन से इसकी सेवा की, इसे गति दी, उज्ज्वलता दी और वर्षों तक संस्थान के संचालक पद पर कार्यरत रहे। श्रव्य स्टूडियो की स्थापना कर आपने रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा का सत्यस्वर के कार्यक्रमों का कार्यभार संभाला और उसे सुचारू रूप दिया। आपने कई पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और आज भी विभिन्न सेवा संस्थानों पर अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर के संचालक पद पर रहते फादर क्लारेंस ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए। उनमें प्रमुख है सन 1990 में पवित्र बाइबल के हिंदी संस्करण का व्यवस्थित प्रकाशन तथा सन 1991 में नए विधान के पॉकेट संस्करण का प्रकाशन तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन। इसके अतिरिक्त आपने विदेशों में भी मध्य भारत प्रोविंस व इंदौर धर्म प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। आप अपने धर्म ज्ञान तथा अन्य कई विषयों के लिए प्रमाणित किया है तथा आपके रचे ग्रंथ, आपके दिए व्याख्यान इसके प्रमाण है। आज हम आपका अभिनंदन करते हैं, शुभकामना करते हैं कि प्रभु कृपा सदैव आपके साथ रहे। आप दीर्घजीवी हो, सदा स्वस्थ प्रसन्न रहते, धर्म, समाज तथा देश की इसी तरह सेवा करते रहें। मैं अति सम्मानीय डॉक्टर उमा शशि शर्मा से निवेदन करता हूं कि आप अपने कर कमलों से फादर क्लारेंस को शॉल व श्रीफल से सम्मानित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः दर्शन में विश्वास रखने वाले, विशेष रूप से दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ आत्मीय भाव रखने वाले व उनके लिए कार्य करने वाले फादर हेनरी नारिया एसवीडी सत्प्रकाशन के शुरुआती वर्षों में संस्थान से जुड़े और अपना अति महत्वपूर्ण योगदान संस्थान को दिया। आपको हिंदी विभाग का कार्यभार दिया गया था। आपने लेखन में हिंदी भाषा का जोर दिया, अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया, अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, लेखन द्वारा नई दुनिया समाचार पत्र से जुड़े रहे और इस प्रकार हिंदी विभाग को एक नई दिशा दी, गति दी। आपके उल्लेखनीय कार्य हैं दलितों के मसीहा नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, कृपा स्रोत पुस्तक का संकलन और कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद। दलितों के हेतु कार्य करने हेतु नई दिल्ली दलित साहित्य समिति ने आपको 2 वर्षों पहले पुरस्कृत किया। आज हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ईश्वर आपके हर कार्य में सहायता करे व आपके साथ रहे। हम आपको भी सम्मानित करते हैं। मैं डॉक्टर उमा शशि वर्मा से निवेदन करता हूं, आप उन्हें भी शॉल और श्रीफल से सम्मानित करें।
एक वादा किया था नहीं छोड़ेंगे हाथ, जीवन सफर में चलते रहेंगे साथ। सत्यप्रकाशन संचार केंद्र के बीते 25 वर्षों से आज तक अगर कोई पूरी कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा है तो वह है श्री पास्कल फेराओ। आप संस्थान की स्थापना से आज तक कार्यरत एक विश्वस्त और निष्ठावान कार्यकर्ता है। गोवा जो अपने सौंदर्य, अपनी ऐतिहासिकता और धर्म आस्था के लिए प्रसिद्ध है, आपकी जन्मभूमि है जिसने आपको विशेष गुण प्रदान किए हैं। आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान तो है ही, साथ ही सबके प्रति प्रेम, आत्मीय और मानवीय भाव, सबके प्रति सहयोग हम आप में पाते हैं। आप मैत्रीभाव से भरे पूरे हैं, हंसमुख हैं। अपने कार्य के प्रति सदा उत्साहित रहो, यह आपके जीवन का मूल मंत्र है। हम अब आपके स्वास्थ्य की शतायु की कामना करते हैं। मैं एक बार फिर से अति सम्मानीय डॉक्टर उमा शशि वर्मा से निवेदन करता हूं, आप उन्हें भी शॉल व श्रीफल से सम्मानित करें। मैं सभी विशेष अतिथियों से निवेदन करता हूं, आप आसन ग्रहण करें। संस्थान की ओर से एक स्मारिका प्रकाशित की गई है। हम फादर मैथ्यू से आग्रह करते हैं कि वे डॉक्टर उमा शशि शर्मा के हाथों स्मारिका का विमोचन करवाने का कष्ट करें। Very Honorable Mayor Dr. Umar Shashi Sharma, Vice Chancellor Dr. Raj Kamal, Your Excellency Archbishop Pascal Topno, Right Reverend Bishops George Anathil, Chakatot Marical and Meda, Father Provincial Dureraj, all our well-wishers and distinguished guests. The chiming of silver bells is exciting. And we are proud that in the midst of a minefield of today's media centers, Satprakash Sanchar Kendra stands out quite unique as a responsible communication center. I believe it is because this institution has negotiated successfully the test of time and fame in the competitive market, offering various media productions of superior quality to our customers. Satprakashan is a unique institution in Indore because it lays special emphasis on specialization and expertise. The center has a team of well-trained personnel who try to redefine the art of communication at various levels. When people demand information tailored to their own specialities, the center is able to deliver it. In fact, it is not that we produce programs that are commercially viable, but in a way that it entertains and builds up the society. Although Satprakashan is not an academic institute, we do teach our customers sound morals and instill in our associates a love of excellence. And so we want to tell you our story of success in this Silver Jubilee year. And we have summarized them in a few pages in our souvenir. What you will find between the covers of this souvenir are the opinions of some of our associates and collaborators in the media, and of course, a glimpse of our own achievements. We have a number of them over the past 25 years. And the people who have made a way of life from this institute are also many. As years pass by and the world of media becomes even more overwhelming, we nurture the hope that our renewed commitment to the mission of effective communication will take us to greater heights at the service of the nation. With this, I welcome
mayor and invite her to release our souvenir. अब हम अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए एक बार फिर तकलीफ देंगे डॉक्टर। सतप्रकाश संचार केंद्र के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में 25 वर्ष पूर्ण होने पर मैं शुभकामनाएं देती हूं और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राजकमल डॉक्टर राजकमल जी और इस शहर के विद्वजनों को मैं नमस्कार। आज जो यहाँ पर ये सतप्रकाशन संचार केंद्र का 25वां वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें मैं जिस प्रकार अभी देख रही थी फिल्म, उसमें जिस रिलीजियस को लेकर और जो हमारी वे ऑफ लाइफ है इंडिया की, उसको जिस प्रकार सचित्र दिखाया जा रहा था, इसकी एक शिक्षा देना, एक इसका लोगों को मास कम्युनिकेशन के माध्यम से बताना, ये सतप्रकाश संचार केंद्र ने किया। और सतप्रकाश संचार केंद्र 25 वर्ष से अपने सफलपूर्वक कार्य कर रहा है और निरंतर इसकी जिस तरह अभी बता रहे थे प्रोग्रेस होती जा रही है भारत में, कि अपना एक अच्छा स्थान रखे हुए है। मेरी यही शुभकामनाएं है कि ये दिनों दिन और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करें और ये अपना नाम और भी अच्छा कर लोगों को इसकी शिक्षा प्रदान करें। यही शुभकामनाएं है। बधाई, धन्यवाद। नाम रोशन कर रही है, उसका नाम है कुमारी आकांक्षा जाचक, जिसने इतनी कम उम्र में अपनी प्रतिभा से सभी गुणी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आकांक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही है एक गीत। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आकांक्षा जाचक को। गीत मानव हित संदेश है, जो सतप्रकाशन की ओर से आपके लिए माननीय श्री दिलीप बोस जी ने संगीतबद्ध किया है, जो मैं आप सभी के समक्ष पेश करने जा रही हूँ।
सच्चा प्यार वही है, रोते को जो हंसा दे, मन से मन की दूरी एक पल में जो मिटा दे। पंछी जो गाए वो है प्यार, झरने सा प्यार का स्वर है। पंछी जो गाए वो है प्यार, झरने सा प्यार का स्वर है। पर्वत के जैसा अडिग है प्यार, इंसानियत की डगर है। मीठी मीठी सी छुअन जैसे चले है पवन, ये प्यार की दुआ है। एक सच्चा प्यार वही है, रोते को जो हंसा दे, मन से मन की दूरी एक पल में जो मिटा दे। कोई वेद हो गए, कोई डर हो गए, एक पल में वो मिटा दे। एक सच्चा प्यार वही है, एक पल में जो हंसा दे। आकांक्षा को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। उनका इस संस्थान से बहुत पहले से घनिष्ठ संबंध रहा है। आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए वे सत्प्रकाशन की भूमिका को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक मानते हैं। आज वे जो गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, वो विशेष रूप से इस संस्था के स्वरूप की अंतरात्मा की अभिव्यक्ति का गीत है। संस्था के प्रति अपने समर्पण भरे गीत की प्रस्तुति के लिए आपके सम्मुख हैं श्री दिलीप बोस। रजत वर्ष शुभ मंगल हो, सत्य मार्ग आलोकित हो तुमसे, सत्य संचारक तुम हो, जनगण मन की वाणी हो तुम। रजत वर्ष शुभ मंगल हो, सत्य मार्ग आलोकित तुमसे हो, सत्य संचारक तुम हो, जनगण मन की वाणी तुम हो। रजत वर्ष शुभ मंगल हो। बढ़ते जाओ बिना रुके तुम सत्य पता का तान, देंगे पथ तुमको गिरि सागर यही तुम्हारी शान। बढ़ते जाओ बिना रुके तुम सत्य पता का तान, देंगे पथ तुमको गिरि सागर यही तुम्हारी शान। लेकर साथ
चले जो सभी को, सत्य प्रकाशन तुम ही तो हो वो, रजत वर्ष शुभ मंगल हो। सत्य मार्ग आलोकित तुमसे हो, सत्य संचारक तुम हो। जनगण मन की वाणी तुम हो। रच दो मानव हित नूतन, मन खोल के उर्बंधन। पढ़े सुने देखे सब जन और करे चिंतन। रच दो मानव हित नूतन, मन खोल के उर्बंधन। पढ़े सुने देखे सब जन और करे चिंतन। सजग सनातन रहा जो विविध में, सत प्रकाशन तुम ही तो हो वो, रजत वर्ष शुभ मंगल हो। सत्य मार्ग आलोकित तुमसे हो, सत्य संचारक तुम हो। जनगण मन की वाणी तुम हो, रजत वर्ष शुभ मंगल हो। सत्य मार्ग आलोकित तुमसे हो, सत्य संचारक तुम हो। जनगण मन की वाणी तुम हो। आज हमारे बीच सेंट अर्नोल्ड स्कूल से पधारे कुछ बाल कलाकार देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति लेकर आए हैं। भारत करते हैं अपने इन बाल कलाकारों का और प्रस्तुति के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। বাজি উঠে রে পবন, চরণে বাজিব তার ছম ঝম। অধরু ঝরিলে পরিরাগ, অটই বিখ্যাত সে দেশরাগ। మధుర గానం తరంగమై
सरगम हर तरफ से गूंज बनकर देश राम बजे सरगम हर तरफ से ताल पर गूंजे। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने संदेश के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। आर्च बिशप पास्कल टोपनो। मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शर्मा महापौर और आज के विशिष्ट अतिथि वाइस चांसलर और यहाँ पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथिगण बिशप जॉर्ज अनाथिल, बिशप चाको और बिशप मैडर और इस संस्था के संस्थापक श्रद्धेय फादर श्रम्पिकल और अभी डायरेक्टर श्रद्धेय फादर जमोन और स्टाफ के सदस्यगण और उनके सभी सहयोगी, आज सचमुच में हम सतप्रकाश संचार केंद्र की रजत जयंती बड़ी खुशी से मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्था ने बहुत बड़े काम किए हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए। प्रभु यीशु मसीह की मूल शिक्षा रही है कि सारा मानव समाज एक परिवार है। हमारे पिता ईश्वर हैं और हम सब उन्हीं के बेटे बेटियां हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से भाई बहनों का व्यवहार करना चाहिए। और आज हमने देखा और सुना सत प्रकाशन संचार केंद्र ने इसी मूल भावना को अपना आधार मान करके कदम बढ़ाए और हमारे देश में, हमारे समाज में एकता, भाईचारा लाने की कोशिश की है और बहुत सुंदर सफल प्रयास रहा है। हम बधाई देते हैं सत्य प्रकाशन संचार केंद्र को उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका काम जारी रहे, प्रभु की प्रचुर कृपा उन पर बरसती रहे और वे सचमुच में हमारे समाज से बुराई को प्रकाश के द्वारा दूर करें। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस ने कहा है, और लोगों को हर प्रकार से स्वतंत्र करें सत्य के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, द ट्रूथ विल मेक यू फ्री, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। तो सच्चाई का और प्रकाश का व्यापक रूप से हमारे देश में इसी तरह संचार होता रहे, इस संस्थान के द्वारा यही हमारी शुभकामना है। मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। के अध्यक्ष और एसबीडी प्रोविंशियल फादर दुरईराज से आग्रह है कि वे आर्च बिशप पास्कल को स्मृति चिन्ह भेंट करें। राजस्थानी मंजीरा नृत्य। इस नृत्य रचना में बताया गया है कि किस तरह नायिका अपने नायक को राम जी की दुहाई देती हुई विनम्र भाव से अपनी मन्नत पूरी करने की आकांक्षा प्रकट करती है और प्रत्येक उत्सव में अपने कुल देवता को साक्षी मानकर उनसे वरदान की कामना करती है। इस नृत्य का संयोजन किया है श्रीमती रागिनी मक्खर ने। प्रस्तुत है मंजीरा नृत्य।
अध्यक्ष फादर दुरईराज से आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपना संदेश देने का कष्ट करें। फादर दुरईराज। Mayor Dr. Uma Shashi Sharma, Honorable Vice Chancellor Dr. Raj Kamal, His Grace Most Reverend Pascal Topno, respected bishops, distinguished guests, strive to influence his fellow men. For this purpose, he has to use means suitable for the circumstances of the time. Passing speech disappears, the printed word remains and can be read again and again. So our founder, St. Arnold Janssen, established a printing press and a publication center in 1870s. Following his advice, in these changed circumstances of our time, we are beautifully blessed with our 25 years old media center, Sat Prakashan. We are right in tune with our founder's vision. When we want to do something good, we have to use the means suitable for the circumstances of our time. The world we live in is multidimensional, and multimedia has become very popular. Multimedia applications are widely used in print, television, advertising. Barkwa, please step in and show your generous support. We are at your service. Thank you very much. कि वे हमारे सम्माननीय आगंतुकों को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। फादर दुरईराज। बिशप जॉन एनाथिल। बिशप मेढ़ा। फादर क्लैरेंस। मैं फादर जोमन से आग्रह करता हूं कि वे श्री पास्कल को भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। अभिव्यक्ति की तमाम विधाओं में एक बहुत सशक्त विधा है नाटक। विचार, ध्वनि और भावनाओं का एक ऐसा प्रतिसंसार इसमें आकार लेता है जिसमें हमारे स्वप्नों, आकांक्षाओं, संघर्षों की हम प्रतिध्वनियाँ सुन पाते हैं। एक नए सिरे से अपनी खुद की तलाश कर पाते हैं। मनोरंजन को सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़कर देखना, समाज की तमाम समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए हास्य व्यंग्य के माध्यम से एक जिम्मेदार हस्तक्षेप करते हुए भविष्य के प्रति उम्मीद, मानवता को बरकरार रखने की जिद। आज यहाँ वैष्णव महाविद्यालय, रूपांकन वाचनालय और इंडियन पीपुल्स थिएटर यानी इप्टा की इंदौर इकाई के साथियों की सामूहिक प्रस्तुति के रूप में हम देखेंगे कृष्णचंद्र की कहानी गड्ढा का नाट्य रूपांतर। इसके निर्देशक हैं श्री इद्रीस खत्री, सह निर्देशक हैं श्री नीरज कुंदेर और श्री अमित सांखला। आपके सम्मुख प्रस्तुत है लघु नाटिका गड्ढा। मगर किसी ने कूड़े की आवाज नहीं सुनी। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया। सवेरा हो गया। अब तो इस बूढ़े की आवाज कोई जरूर सुन लेगा। कोई आ रहा। अरे कोई है, अरे बचाओ, अरे इस बूढ़े
को बाहर निकालो भाई। अरे अरे इस बूढ़े को बाहर निकालो। बाबूलाल, बाबूलाल, देखो कोई गड्ढा वड्ढा तो नहीं इधर? सर ये तो कोई गड्ढा। अरे अरे ओ बाबूजी, अरे इस गड्ढे से मुझे बाहर निकाल लो बाबूजी। सर इस गड्ढे में तो कोई गुड्डा गिरा हुआ। क्या? गड्ढे में गुड्डा? हाँ साहब, ओ साहब मुझे बाहर निकाल लो साहब इस गड्ढे से। ऐसा है, अगर इसे बाहर निकाला तो अखबार में खबर छप जाएगी। और आजकल सड़क के गड्ढों को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। बड़ा रहने दो ससुरे को, नहीं मर जाएगा। ना तो हम लोग तो भी नापजोक करने आए। हाँ गड्ढों की। हाँ ले लो उसकी भी नापजोक। हाँ हाँ चौड़ाई कितनी इसकी? 5 फुट। गहराई नापो इसकी। 12 फुट तो आते। अबे अबे ये क्या कर रहा है? अबे छोड़, ध्यान का नहीं। हम सरकारी ऑफिसर हैं। हमारा काम गड्ढों की नापजोक करना है, किसी को गड्ढे से निकालना थोड़ी है। समझे? समझे? अरे साहब, अरे हमें इस गड्ढे से बाहर तो निकालते जाइए। अबे चुप। बाबूलाल तू बहुत तेज है। चलो बाकी की फाइल हम ऑफिस में बैठ कर निकालेंगे। अरे अरे ओ साहब, अरे ओ साहब, अरे मुझे बाहर तो निकालते जाओ इस गड्ढे से। अरे कोई तो इस गड्ढे से बूढ़े को बाहर निकाल लो। अरे कोई तो बाहर निकाल लो इस बूढ़े को। निरंजन बम्बम बोले शिव शंभू। लगता है साधु मारा जा रहा है। ये अवश्य मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। अरे ओ महाराज जी। निरंजन बम्बम बोले शिव शंभू। अरे ओ महाराज जी, अरे इस गड्ढे से बाहर निकाल लो मुझे महाराज। सेवक कहाँ रह गए सेवक? दुखी आत्मा के अंतर मन की आवाज आई बच्चा। अरे अरे हम इस गड्ढे में पड़े हैं महाराज। भगवान के लिए मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लो महाराज, मुझे बाहर निकाल लो। बच्चा तुम इस गड्ढे में क्या कर रहे हो? क्या पाताल मार्ग खोज रहे हो? अरे नहीं महाराज, अरे इस गड्ढे में हम गिर गए महाराज, बाहर निकाल लो महाराज। बच्चा आओ भक्त की व्यथा सुन ले और थोड़ा सत्संग भी कर ले। धूम्रपान की आदत है। बच्चा साधु महाराज प्रभु की इच्छा में विघ्न नहीं डालेंगे। मैंने कहा ना कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और प्रभु की इच्छा है कि तुम इस गड्ढे में ही पड़े रहो। तो हम भला प्रभु की इच्छा के विपरीत कार्य कैसे कर सकते हैं? तो क्या आप भी मुझे इस गड्ढे से बाहर नहीं निकालेंगे महाराज? नहीं बच्चा, वो क्या है, हम जरा हरिद्वार जाए हैं, तुझे कुछ दान दक्षिणा देनी हो। अरे भाई प्रभु के चरणों में तो तू हमें दे दे। अरे अरे इस गड्ढे में पड़े पड़े मेरा दम घुट रहा है और तुम दान दक्षिणा की बात कर रहे हो। चिलम पियोगे बच्चा? अरे बाहर में गई तुम्हारी चिलम फिलम। मुझे तो इस गड्ढे से बाहर निकाल लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। ठीक है बच्चा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। चाहो प्रसन्न रहो, योग करो, प्राणायाम करो, गड्ढे में ही पड़े रहो। अरे जाओ बाबा जाओ। बम बम बोले शिव शंभू। अरे अलख निरंजन बम बम बोले शिव शंभू। अलख निरंजन। अरे कोई है? अरे इस गड्ढे से मुझे बाहर निकाल लो भाई। अरे आवाज है। बाहर निकाल लो। लगता है इस गड्ढे में कोई है। अरे बाबा, आप इस गड्ढे में क्या कर रहे हैं? कौन? वकील साहिबा,
अरे इस गड्ढे में गिर गए हम और क्या कर रहे हैं। ओह, आप इस गड्ढे में गिर गए हैं? ये नगर पालिका वाले बूढ़ों की पेंशन खा जाते हैं, सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा सकते। बाबा, आपको निकलवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाबा, आप चिंता न करें, मैं तुरंत कार्रवाई करवाती हूँ। इन नगर पालिका वालों को हाई कोर्ट में खींच के लाऊंगी, इनकी ईंट से ईंट बजवा दूंगी। इस केस को मैं आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट ले जाऊंगी, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगी। बाबा, आप यहीं रहना, मैं अभी अरे हमें निकालते तो चाहिए वकील साहिबा। बाबा, गड्ढे में ही पड़े रहना, मैं अभी आई। अरे कोई तो गड्ढे से बाहर निकाल लो भाई। अरे इस बूढ़े को गड्ढे से बाहर निकाल लो कोई। अरे कोई है? हम जैसे लोगों को अब समाज में निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। आज भी इस तरह की अरे कोई है? अरे ओ भाई साहब। अरे वो सही आवाज किधर से आती? हाँ भाई, पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, पर चिल्लाने की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। अरे हम यहाँ आए इस गड्ढे में। अरे बाहर निकाल लो भाई यार, बाहर निकाल लो। अरे वो सही देखो नहीं, आप तो गड्ढे में गिर गया नहीं। हाँ, यह तो कोई बूढ़ा है। अरे बहुत गहरा गड्ढा है, जो इसे निकालेगा वो खुद ही इसमें गिर जाएगा। बाबा, पर इसको निकालना तो पड़ेगा नहीं तो पड़े पड़े मर जाएगा। अरे इसको निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो क्या है, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैंने सोशल वर्क में एमए किया है, तो समाज सेवा तो मेरा कर्तव्य है। पर वो क्या है, अभी अभी बड़ी मुश्किल से डिग्री मिली है। अब इससे परोपकार करने लग जाऊंगा तो क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा। मैं मामले के लिए आज मैं के लिए कुछ करूंगा, पर बात ऐसी है कि इन बुड्ढों को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो जब फंड मिल जाएगा तो मैं आपको भी जरूर निकालूंगा। अच्छा चलता हूँ बाबा, प्रैक्टिकल का मौका फिर कभी। चलो भाई। अरे मगर सोशल वर्कर साहब से निकलवा तो देते जाओ। अरे अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन यकीन जानिए मैं फंड लेकर जरूर आऊंगा। अरे भाई साहब, आप भी कुछ मदद करो ना। मैं नहीं भाई साहब, मैं इस बेकार के लफड़े में नहीं पड़ता। एक पुलिस केस बन गया तो वैसे भी मुझे मिट्टी का तेल लेने जाना है। आजकल तो लंबी लाइन लगती है केरोसिन के लिए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अरे आप इसको निकलवा तो जाओ। भाई साहब, इस बवाल में नहीं पड़ना चलता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैं तो चला, मैं नहीं कर सकता। लो भाई, एक वो थे सोशल वर्कर साहब जिन्हें इनके ऊपर तरस नहीं आया, और एक ये भाई ने मिट्टी का तेल ले जाना था। बाबा ऐसा करो, मैं आप हाथ बढ़ाओ, मैं ही निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे थोड़ा और बाबा। हाँ बेटा। थोड़ा और। हाँ बेटा। अरे थोड़ा और। हाँ बेटा। अरे और। लो बेटा। हाँ क्या कर रहा है? अरे बस वो गड्ढे में बुड्ढा। अबे साले, गड्ढे में बुड्ढा नहीं तो क्या हम जवान लोग गिरेंगे? तू मेरे इलाके गड्ढे में हट जाता है, बोलता पलटू राम के। चलो आ गया था। बे बुड्ढे, क्या कर रहा है गड्ढे में बैठकर? अरे हजूर, अरे गड्ढे में गिर गया साहब, और क्या कर रहा हूँ। अबे साले, मुझे तो तू कोई पाकिस्तानी जासूस लगता है। और ये तू बैठा किस पे बे? पानी के पाइप पर? मुझे तो लगता है पानी के पाइप में छेद करके पूरे शहर को जहर पिलाएगा। अरे नहीं साहब नहीं, हम कोई जासूस पासूस नहीं है साहब, हम तो यही पास की बस्ती में रहते हैं साहब। बस बस, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। चल तेरा चालान कटेगा। बोल तेरा नाम क्या है? हजूर लाखन। तेरे बाप का नाम? हजूर माखन। तेरी उम्र कितनी है बे? हजूर 52। साले, नाम पता बता रहा है, जो कोई कविता वगैरह सुना रहा है? तेरा चालान कट गया, कल थाने आ जाना पैसे लेकर, ना पूरे परिवार समेत अंदर कर दूंगा, समझा? चल। अरे 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 हवलदार साहब, अरे मुझे बाहर तो निकालते जाते हैं। अरे हवलदार साहब,
अरे कोई तो इस बूढ़े को बाहर निकाल देता। अरे कोई है, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो भाई। Hello friends, have you seen any pothole around here? क्या आपने इधर कोई गड्ढा वड्ढा देखा क्या? अरे हम यहाँ हैं इस गड्ढे में। Oh, an old man and गड्ढा? Hello old man, मेरा नाम जॉनसन एंड जॉनसन है। मैं अमेरिका से आया हूँ। मेरा काम हिंदुस्तान में गड्ढों का साइंटिफिक एनालिसिस करना है। वैज्ञानिक विश्लेषण। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना मांगता। अरे पूछो बाबा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम इस गड्ढे में कब से है? कब से हूँ? अरे कल रात काम करके लौट रहा था, सड़क पर बत्ती भी नहीं थी, और वैसे भी इस बुढ़ापे में मुझे कम दिखाई पड़ता है। पैर फिसल गया और तब से ही इस गड्ढे में पड़ा हुआ हूँ। अब तुमको इस गड्ढे में कैसे लगता है? How do you feel now? कैसा लगता है? अरे ऐसा लगता है जैसे इस गड्ढे में पड़े पड़े सदियां गुजर गई हो। Oh, very nice, very nice. बुढ़ा आदमी गड्ढा में बैठ के भी पोएट्री करता है। Very poetic answer. India is land of poetry. हाँ तो बाबा, आपको इस गड्ढा में कुछ मांगता है? हम आपको बहुत ही सॉफ्ट इंटरेस्ट पे, I mean मामूली ब्याज पे लोन देगा। आपको टीवी, फ्रिज, मोबाइल कुछ मांगता है तो बोलो। अरे हमें नहीं चाहिए टीवी फीवी की बीमारी, हमें तो इस गड्ढे से बाहर निकाल लो। Sorry old man, ये हम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हम इतना जरूर करेगा, इसकी एक रिपोर्ट बनाकर हमारी सरकार को देगा, हमारा सरकार ये रिपोर्ट आपकी सरकार को देगा, आपका सरकार उसके लिए कमीशन I mean आयोग बनाएगा, तब जाकर आपको गड्ढे से निकाला जाएगा। हाँ तो आपको इस गड्ढा में कुछ मांगता है? आपको वर्ल्ड बैंक का लोन मांगता है तो बोलो। अरे लोन फोन नहीं चाहिए, हमें तो इस गड्ढे से बाहर निकाल लो, वरना चले जाओ यहाँ से। Okay, bye. Best of luck and enjoy yourself in गड्ढा। Bye. अरे जाओ यहाँ से। अरे कोई है? अरे मुझे बाहर निकाल लो भाई। अरे ये मंत्री जी के आने का टाइम क्या था? इन नेताओं का कोई टाइम फिक्स होता है, आते ही होंगे। अरे मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस गड्ढे में से। ओह क्या बात है, गड्ढे में बुढ़ा। हाँ। इस खबर को तो हमारे चैनल द्वारा जनता तक पहुंचना चाहिए और इसका तो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। दीपक, दीपक, दीपक क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ हाँ डॉली बोलो। गड्ढे में बुढ़ा दीपक। क्या? गड्ढे में बुढ़ा? हाँ हाँ। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तुम फटाफट इंटरव्यू शुरू करो। कैमरामैन ओके? ओके। दादा, दादा हम टीवी चैनल परसों तक से हैं और मैं डॉली आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है दादा? दादा क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कौन है भाई? दादा हम टीवी चैनल परसों तक से हैं और मैं डॉली हूँ, आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। क्या टीवी चैनल वाले? अरे वाह भगवान वाह। अरे जब मैं सड़क पर चलता था तब कोई टीवी चैनल वाला नहीं आया, और आज इस गड्ढे में हूँ तो टीवी चैनल वाले आ रहे हैं। अरे मुझे प्रिंस बना दिया, प्रिंस। ठहरो, पूछो क्या पूछना चाहते हो? दादा एक बात बताइए, आप इस गड्ढे में कैसे गिरे? कैसे गिरा? अरे काम करके लौट रहा था, सड़क पर बत्ती भी नहीं थी, अंधेरे में पैर फिसल गया और गिर गया इस गड्ढे में। दादा आप इस गड्ढे में कब से हैं? और हाँ इस गड्ढे के पहले आप कहाँ थे दादा? बताइए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताइए दादा। अरे मैं किशनपुरा पुल के नीचे झुग्गी बस्ती में रहता था, मगर इन कमबख्त नगर निगम वालों ने मेरी झोपड़ी हटवा दी और अब मैं बहुत दूर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास बस्ती में रहने चला गया हूँ।
वहां से काम करने सियागंज जाना पड़ता है। काम करके लौट रहा था और दिखाई नहीं पड़ा। बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई हैं और सड़कों पर बत्ती तक नहीं लगी थी तो गिर गया इस गड्ढे में। कल से अब तक यानी कि पूरे 13-14 घंटे से आप इस गड्ढे में ही हैं। दादा ये तो बताइए आप इस गड्ढे में महसूस कैसा कर रहे हैं? प्लीज दादा बताइए। अरे 13-14 घंटे से इस गड्ढे में हूँ मैं। आप 13-14 मिनट तो इस गड्ढे में रहकर देखिए, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दादा एक बात तो बताइए, आप इस गड्ढे में गिरने पर दोषी किसे मानते हैं? गड्ढे को, राजनेता को, सफाई विभाग को, बिजली विभाग को, व्यवस्था को या फिर अपने आप को? दादा बताइए। क्या? अरे मेरे इस गड्ढे में गिरने से इतने सारे लोग दोषी हैं और मुझे मालूम भी नहीं। अरे मुझे बाहर तो निकलने दो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा मैं। हाँ दादा निकालेंगे। दर्शकों अभी तक आपने देखा एक बूढ़ा आदमी लाचार बेबस आज बूढ़ा गड्ढे में गिरा है। कल बच्चा भी हो सकता है। बच्चा यानी देश का भविष्य कल गड्ढे में। डॉली क्या कर रही हो? ब्रेक का वक्त हो गया डॉली। जी हाँ दर्शकों, इस गंभीर मसले पर हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे फिर रूबरू होंगे, लेकिन ब्रेक के पहले एक प्रश्न दर्शकों आपके लिए। क्या पापा गड्ढे में से वापस निकल पाएंगे? और अगर निकल भी गए तो क्या जीवित वापस रह पाएंगे? हमें अपनी तुरंत प्रतिक्रिया 420420 नंबर पर दर्ज करावे। कैमरामैन अश्विन के साथ मैं डॉली, देखते रहिए परसों तक। अरे मुझे बाहर तो निकालते जाते टीवी वाली बाई। अरे बाहर निकाल लो मुझे। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे इस अंधेरे में मेरा दम घुट जाएगा। अबे चुपचाप अंदर लेकर है। अरे नहीं भाई, मुझे बाहर निकाल लो। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शान भाइयों शान, कितना प्यार करते आप मुझसे। अरे भाई यही तो परंपरा रही है इस देश की, शासकों का सम्मान करना, उनके स्वागत में पलके बिछाना। आज सब कुछ ठीक ठाक है? कोई गड्ढा वड्ढा नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है। मैं आ रहा हूँ ना VIP रोड से, सब सुखी है, सब खुशहाल है हमारे समाज में। मगर ये विरोधी पार्टी के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। ये विदेशी शासकों के दल है, कहते हैं सरकार की रेलगाड़ी अब पटरी पर से उतर गई है, गवर्नमेंट डिरेल्ड हो गई है। अब देखो वहां नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये विरोधी पार्टी के लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। अभी अरे भाई दूर रहो। वो क्या था वो निठारी कांड। हाँ ये निठारी कांड भाई बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। मासूम बच्चों की हत्या घोर पाप है, ये गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है। अब हमारी 1 अरब की आबादी है, अब अगर इसमें 100-200 बच्चे कम भी हो गए तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट गिरा दे? ये सब हमारे विरोधी पार्टी लोगों की चाल है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ किसान भेज दिए मेरे बंगले पर, कहने लगे हुजूर बारिश नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। अरे मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग किनकी संतानें हो? अरे भाई तुम लोग ऋषि मुनि की संतानें हो। वो लोग कहाँ रहते थे, अब क्या खाते थे? अरे भाई वो लोग गुफाओं में रहते थे। शास्त्री जी ने तो बताया नहीं था। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था, जैसा प्यार इसने हमेशा बना के रखा इस बार भी बना के रखेगा। और हाँ इस बार पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र से मेरा बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। मेरा बेटा मर गया है। हम दोनों आपकी सेवा में अपनी जान तक दे देंगे। ये पत्रकार लोग मुझे इनसे बड़ी शिकायत है, कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, भूकंप आ रहा है और नेताजी हंस रहे। अरे भाई मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ। देखो दुखता है। अच्छा भाइयों मैं चलता हूँ, अपनी दया दृष्टि बना के रखिएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो चले गए भाषण देकर। हमारी मिल के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। मेरे सब नेता ऐसे ही होते हैं। चलो पटरा उठाओ। चलो उठाओ पटरा, सब नेता ऐसे ही होते हैं। पटरा उठाओ भाई। चलो चलते हैं। अरे जरा बैठ, कहाँ जल्दी मचा रहा है? तंबाकू वंबाकू खा ले।
अब अपनी कौन सी मिल खुल रही है जो सायरन बज रहा है, वहाँ टेम पे पहुंचना है। अरे टेम ही टेम है अब तो, सबको हमारा ये टेम ही तो करता है। अरे क्या हुआ, तेरी खोपड़ी बहुत गर्म हो रही है? अरे होना क्या है भैया, सबकी एक जैसी कहानी। इसका बच्चा बीमार है, दवा दारू को पैसे नहीं, किसी के घर में राशन नहीं, किसी के बच्चे का नाम स्कूल से कट गया है। सबकी कह रहा है, अपने क्यों नहीं कहता कि कर्जे वाले आए होंगे घर पे, उनके डर से यहाँ पे बैठा हुआ है। सबकी सबको पता है यार। अरे अब वो दिन तो सपने जैसे लगते, जब मिलें चला करती थी, बधी बधाई पगार मिलती थी, साइकिल पर जाते थे ठसके से बैठकर 5 बजे घर। ओ बाबूजी, वापस आ जाओ वापस, वो साइकिल तो कब की पंचर हो गई है। अरे भाई, हाँ भाई, 2 बरस मैंने भी मिल में काम किया है, बदली पर जाता था मजदूरी करने। अबे चुप, यहाँ पर 2 पीढ़ियां गुजर गई मिल में काम करते हुए, और तू अपने 2 बरस गिना रहा है। चलो भाई चलते हैं, चलो। अरे अबे हमसे हमारी तो समझ नहीं रही है, तू फालतू ही हमारे गले पकड़ रहा है। अरे चला चला। कहाँ जा रहे हो आप? अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे ऐसे छोड़ के ना जाओ मुझे। अरे मुझे इस गड्ढे से बाहर तो निकाल लेते, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लेते। अरे कोई है, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लेते। मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? अरे कोई है, अरे मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो इस गड्ढे से। अरे कोई है, गड्ढे से आती ये बेबस पुकार सिर्फ इस बूढ़े की पुकार नहीं है, बल्कि ये इंसानियत है जो जिंदा रहने की ख्वाहिश में चीख रही है, छटपटा रही है। क्या ये बूढ़ा यूं ही लाचार इस गड्ढे में मर जाएगा? क्या इंसानियत को बचाने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ेगा? उठो बाबा, निराश न हो, उठो। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। बाबा, मैं तुम्हें निकालूंगा गड्ढे से, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम भी आ रहे हैं बाबा, हम निकालेंगे तुम्हें। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ, बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तुझी या दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझी या दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर
पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तुझे जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझे जमाने के लिए, अपनी चल महताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल महताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल, जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तुझे जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आप देख रहे थे लघु नाटिका गड्ढा। अब हम आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं फादर जॉर्ज को। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जन, सत्प्रकाशन के 25 वर्ष पूरे होने के इस समारोह तक आने की हमारी 25 वर्षीय यात्रा में आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और वे सभी जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन जिनकी शुभकामनाएं, सहयोग और सदिच्छा हमें यहाँ तक लाई है, हम उन सभी का दिल की गहराई से आभार मानते हैं। आप सभी की वजह से सत्प्रकाशन संचार माध्यम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आवश्यक भूमिका निभा सका है। हमने सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ, सत्य और मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया और हम लगातार उस पर कायम रहे। सम्मानीय महामहिम को इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन अनायास उनका स्वास्थ्य बिगाड़ने के कारण वे नहीं आ सके। हालांकि हमें उनके आशीर्वाद वचन प्राप्त हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो। आदरणीय महापौर और आदरणीय कुलपति और महामहिम आर्च बिशप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ अपने सानिध्य प्रदान किया, उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करेंगे। बिशप जॉर्ज अनातिल, जिसका मार्गदर्शन आध्यात्मिक और अन्य प्रकार के मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा एक दीपक के समान रहे हैं, आज यहाँ पर आने के लिए भी और हर प्रकार के उनके व्यक्तिगत मदद और मार्गदर्शन के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिशप चाको जी और हमारे प्रोविंशियल फादर दुरेराज, उनके भी मार्गदर्शन और सभी प्रकार की मदद हमेशा हमारे कंधों के लिए बल प्राप्त किए हैं, उसके लिए और आज के उनके सानिध्य के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी के सामने हम एक व्यक्ति को जिसके आचार्य के समान
एक अच्छे मित्र के समान और एक सलाहकार के समान सत्यप्रकाशन को मिले हैं। वो अन्य कोई नहीं, आप सब परिचित है, मिस्टर महेंद्र जोशी जी, जो हमारे लिए हमारे हर पल में इस प्रोग्राम में हो, सत्यप्रकाशन के किसी भी गतिविधि में हम जब उनके सलाह और मदद मांगे हैं, अपना सब कुछ त्याग करके, उम्र तो काफ़ी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे मदद के लिए और अच्छे सलाह के लिए हमारे साथ रहे हैं। उसके इस प्रकार के सभी मदद के लिए, योगदान के लिए जो सत्यप्रकाशन आज हम देखे हैं, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। उसके साथ में हमारे एक पत्रकार दोस्त हैं अरविंद तिवारी जी, जो हमारे आज के कार्यक्रम में हमें काफ़ी कुछ मदद दिया था, और उसके सानिध्य और सभी प्रकार की मदद के लिए उन्हें मैं बहुत सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आज हम इतनी खूबसूरत एक ऑडिटोरियम में बहुत शांति से बैठकर इतने समय बिताया, इसके पीछे भी काफ़ी लोग अपने मेहनत लगाए। एक मित्र के जैसे और अच्छे सहभागिता देते हुए मिस्टर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह और चंदन गुप्ता जी हमारे साथ रहे। सभी प्रकार के आयोजन के लिए हमारे मदद दे दी, तो उनको भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आज के सभी कलाकार जो डांस में रागिनी मकर के नेतृत्व में जो प्रोग्राम हमारे लिए प्रस्तुत की, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ में डॉक्टर जया और मिस्टर विनीत तिवारी, वे भी सत्यप्रकाशन के लिए बहुत मददगार दोस्त है। उनके पूरा पता नहीं कितने दिन, 2 या 4 दिन रात वो लोग हमारे इस प्रोग्राम तैयार करने में हमारे साथ रहे, और जिस छवि और जिस प्रकार के एक दृष्टिकोण हम समाज को देने चाह रहे थे, वो समझ गया हमारे मन से, वो तो बोला हम इस प्रकार के एक प्रोग्राम आज के सदस्य के लिए हम प्रस्तुत करेंगे। तो उनके सभी प्रकार के मदद के लिए और जो भी लोग इसमें भाग लिए, एक अच्छा संदेश हम सबको प्रदान किए हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आज एक और विशेष धन्यवाद के पात्र लोग जो है हमारे पत्रकार बंधु और मीडिया के तमाम सभी साथियाँ, वो लोग भी सत्यप्रकाशन की इस रजत जयंती को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ रहा और काफ़ी योगदान भी किया, बहुत अच्छे योगदान दिया। उसके लिए हम उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं उन सभी व्यक्तियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आज के इस कार्यक्रम में अपना योगदान किया है। और आखिर आप सभी ने इस प्रोग्राम का शोभा बढ़ाया, आनंद किया हमारे साथ मिलकर इस जुबली वर्ष में। अभी जुबली हम चालू किए हैं सिल्वर। मैं चाहता हूँ सत्यप्रकाशन गोल्डन जुबली भी इसी प्रकार और अच्छे पीढ़ी चढ़कर समाज को अपना योगदान देते हुए, महत्वपूर्ण योगदान मीडिया के क्षेत्र में प्रदान करते हुए आगे बढ़े, ये हमारी कामना। आप सबको दोबारा एक बार और फिर धन्यवाद। अभी हम सब कृपया खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान गाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे आए
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सबको शुभ रात्रि। कर देंगे रेगुलर विजिटर देख देख आगे Okay, इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं